कश्मीर लाइफ का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने हालांकि कौमी रिक्वेस्ट की कि इस फिल्म को यहाँ चलाया जाना चाहिए। दैट इज courtesy of the sort of a friend मसूद हुसैन। एक मासूम है बड़ी तवील सी मेरा सफर, तो मेरे जहन में आई उसके दो बंद मुझे लगा कि हंसवे हाल हैं, घुमलाएंगे, आंखों के दिए बुझाएंगे और पर्दे जुबान से लुत्फ सदा की हर तितली उड़ जाएगी। मैं इसका जो बीच का पोर्शन है वो छोड़ रहा हूं। इसका आखिरी बंद, लेकिन मैं यहां फिर आऊंगा, बच्चों के दहन से बोलूंगा, दहन से बोलूंगा। मैं रिक्वेस्ट all of you to extend your blessings to Tawheed Shujaan Bukhari, who makes his first public appearance today at the prime of life, especially when it seems like an irreplaceable part of your body is gone. My father was a busy person. He would often be on a trip or work outside the state. I used to wait patiently for him, knowing that he is alone. Now when I think of it and realize that he isn't going to return, it makes a lot of difference. In 2016, when my father suffered a stroke, we were all in a state of shock for days together. But his miraculous recovery and his own fighting spirit as not to give up surprised us. We all took a lesson out of it, and as my father used to say and used to believe, never give up. Now, the reality is that he is no more. I cannot bring him back, but at least in memory of him, I can live a life that I know he would have been proud of. I miss a million things, every detail of which is my father. He taught me so much in the short time that we spent together. The only solace in this dismal time is the support that I have received from my family. My mom kept the dream of my father alive by running all the newspapers under Kashmir Media House as editor-in-chief. On this occasion, I want to confer thanks to my whole family for the wishes that they have rendered. I also want to pay tribute to the two security officers, Hamid uncle and Mumtaz uncle, that also lost their lives beside him. I will also extend my sympathies to their family. Thank you. Again, normally it's an honor and a pleasure to read a book and then to review a book. But reading this book, every inch, every word, every line was a pain. I titled this small book review, going by the proceedings of this function, I titled this Reading Shujaat, Between the Red Lines. Normally we read between the lines. Before we guest our two honorable guests to speak on the occasion, आज का इवेंट जो हमने किया, it was to pay tribute to my father and launch the book that we have been compiling from the past few months, Kashmir's Thin Red Lines.
My mother compiled it. She compiled her works from the past few years, and we launched it today. And in order to pay tribute to him, inshallah, we already made it a year without him, and inshallah, we will prosper. देखिए, बहुत मुश्किल है इस वक्त कहना। एक तो जज्बात का इजहार करना, एक साल के बाद भी यकीन नहीं होता कि शुजात बुखारी हमारे बीच में नहीं है। तो इसलिए एक थोड़ी सी मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, लेकिन आई थिंक एक डिससर्विस होगी शुजात के लिए अगर उसके बारे में कहा नहीं गया। उसकी एक मेजर कंट्रीब्यूशन रही है मीडिया को लेके, बाकी सिविल सोसाइटी के काम को लेके, पीस एक्टिविज्म को लेके, और मेरे साथ जो एक पर्सनल और प्रोफेशनल ताल्लुकात हमारे बहुत पुराने हैं। तकरीबन 90 के दशक में ही उन्होंने कश्मीर टाइम्स में काम करना शुरू किया था। मैं कुछ साल, एक आध साल उनसे सीनियर थी प्रोफेशन में, और एक साथ बहुत साल काम किया। उसके बाद जब वो गए भी, हिंदू में गए, अपना अखबार भी शुरू किया, तो वो एक पर्सनल लेवल पे ताल्लुकात ख़त्म नहीं हुए, और एक पीस एक्टिविज़म में भी उनके साथ हम काम करते रहे। कई मीटिंग्स में मिले, कई मीटिंग्स ऑर्गेनाइज भी की और डायलॉग्स किए। कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस भी थे, कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते थे, एग्रीमेंट्स होते थे, बट बहुत एक रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के लिए। उनका काम करने के तरीके पे और मेरे काम करने का तरीका मुख्तलिफ था, उस पर भी बहस होती थी, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक फील, एक उनकी कंट्रीब्यूशन जो थी बहुत आला दर्जे की थी, और उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्वेस्टिगेशन 1 साल होने को आया। अगर ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर है कश्मीर में, तो इसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई है? सिर्फ थियरीज हैं हमारे पास, एविडेंस नहीं है। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेट करने लगता है ये स्टोरी, कोई भी जर्नलिस्ट, तो उसे रोका क्यों जा रहा है, या वो कहीं पब्लिश क्यों नहीं हो रही है? अव्वल तो कोई फैक्ट्स ही नहीं इमर्ज हो रहे, पुलिस क्यों नहीं ये बात सामने कर रही है? तो इसका वो तो ये पुलिस ही बेहतर बता सकती है वो क्यों छुपाना चाहते हैं और किस वजह से छुपाना चाहते हैं और किसको छुपा रहे हैं। देखिए, शुजात साहब के साथ मेरे जो ज़ाती रवाबत थे वो मेरे दोस्त भी थे, मगर मैं उसके साथ साथ मैं उनको अपना बड़ा मानता था और एक उस्ताद की हैसियत से उनको देखता था। वो जहांदीदा इंसान थे, इसलिए दुनिया की बहुत जो इलाकों में वो घूमते थे वहाँ के तजुर्बात मेरे साथ शेयर करते थे, यहाँ की सियासत के बारे में जो उनके नज़रियात थे मेरे साथ शेयर करते थे। तो मुझे लगता है हर दिन शायद उनके साथ बात होती थी, और जब से फिर उनका इंतकाल हो गया, मैं सच बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ तब्दील हुआ उस दिन से। बहुत सारे ऐसे फ़ैसले मैंने ज़िंदगी में इसलिए किए कि शुजात साहब हमारे दरमियान नहीं रहे। इनफरादी सतह पे शुजात साहब का जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, और शायद आज भी मैं उस चीज़ से रिकनसाइल नहीं कर पाया हूँ कि शुजात साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो इज्तिमाई नुकसान वो हुआ है कश्मीर को, जब भी किसी कौम की, किसी सोसाइटी की आपको बेखूनी करनी हो तो आप पहले दानिश्वरों को, इंटेलेक्चुअल क्लास को ख़त्म करते हैं। तो मैं उस नज़रिए से भी शुजात साहब के जाने को देखता हूँ। अल्लाह ताला करे कि उनकी जो फैमिली है उनको सब्र दे दे और कश्मीर को ये एहसास दिला दे कि कब तक हम ऐसी जो आवाज़ें हैं उनको अपने से दूर होते हुए खामोश रहेंगे, हमें शायद इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। देखिए, ये भी एक पुरमज़म्मत एक चीज़ है कि अगर आज के दिन भी ये जो हमारे जर्नलिस्ट हज़रात हैं उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, तो कश्मीर में जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में जब भी परेशानी आती हैं तो जर्नलिस्ट बार बार इसके शिकार होते हैं। मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह स्टेट आने वाले दिनों में इस पर ज़्यादा सेंसिटिवली शायद इस चीज़ को देखेगी।
आज भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो शुजात साहब की शहादत के बारे में अभी भी मंडला रहे हैं। अभी उन सवालों का जवाब नहीं मिला है। मेरी उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द इस केस का कोई न कोई क्लोजर होगा और पूरी कौम को ये जवाब दिया जाएगा कि वो कौन से कातिल थे जिन्होंने इस आवाज़ को खामोश कर दिया और उन कातिलों के साथ क्या किया जा रहा है। यहाँ पे बुक रिलीज है आज शुजात साहब की लिखी हुई किताब का। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है, पहली बरसी है। गम का समा है ही पूरे सहाफत के इधर, ये कश्मीर में जितनी सहाफ़ी हैं और जो सहाफत है उसके लिए गम का मौका है। और जो सबसे बड़ी जो इसमें एक सानिया इस मामले में कि अभी तक इसमें एफआईआर तो हुआ था, अभी तक चार्जशीट नहीं हुई है। केस का सॉल्व क्या है, कब सॉल्व होगा वो कुछ पता नहीं है, तो वो एक सीरियस कंसर्न है इस मामले में। देखिए जर्नलिस्ट तो अपना काम कर रहे हैं। शुजात साहब का जो अखबार था राइजिंग कश्मीर, वो तो उसी दिन से काम कर रहा है जिस दिन शुजात साहब की शहादत हुई। तो लेकिन जो एक भरोसा जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेक्टेशन होती है कि एक ऐसा सानिया हुआ और उसके बाद अभी तक उस पर आपने चार्जशीट भी पेश नहीं की है, तो एक वो भी एक हुकूमत की तरफ से एक सानिया बनता है इस मामले में। ये जो किताब है शुजात साहब की, ये शुजात साहब ने कुछ हिस्सा इसका लिखा है और कुछ उनकी मिसेस जो हैं डॉक्टर तहमीना बुखारी, उनने उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि अभी शुजात साहब के तो जहन में भी नहीं होता कि वो किताब लिखते लिखते ही शहीद हो जाएंगे, तो वो एक मामला इसमें था। तो अब आज जो ख़ास तौर पे जो यहाँ सब जमा हुए हैं वो शुजात साहब को और यहाँ की सहाफ़त को याद करने के लिए जमा हुए हैं कि कश्मीर में कैसे हालात हैं। पिछले 30 सालों में 18 जर्नलिस्ट यहाँ पे शहीद हुए हैं और शुजात साहब की जो शहादत थी रमज़ान में आखिरी दिन पे इफ्तार के लिए वो निकल रहे थे, तो उस टाइम उन्हें अपने PSOs के साथ शहीद किया गया। तो ये समझ आता है यहाँ पे कि कश्मीर में काम करना जर्नलिस्ट के लिए कितना मुश्किल है। और साथ ही ये भी देखते हैं हम कि यहाँ पे गवर्नमेंट कितना नॉन सीरियसली लेती है इस मामले को, कि उनका अभी तक चार्जशीट भी इस केस की पेश नहीं हुई है। जो लोग पुलिस ने बताया था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के बाद पुलिस ने एक नया स्टेटमेंट दिया ह्यू एंड क्राई नोटिस में, और उनमें से 4 में से 3 को बताया गया कि ये शायद प्रोबेबल है। प्रोबेबल का मतलब होता है कि पुलिस को भी पता नहीं है वो है कि नहीं, बस वो एक प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे चल के वो बात कर रहे हैं।